Good morning, students. Welcome back. Welcome back to the Gnan Manjari Modern School. Today we are taking the class 8 and mathematics, and today's topic that is exercise 3C. In the previous session we already taken the question number 4 till the question number 4. Okay. Now we are moving on the question number 5. Simplify. Okay. So let's start without wasting our time. Question number 5, that is simplify. In the simplify, one of them that is given as a square root of a square into b raised to 4. First, a is given as a in a square root a raised to 2 into b raised to 4. Okay, we need to first of all factorize these numbers. Okay, so therefore we are factorizing these numbers. A square, that means we are multiplying a 2 times, and b raised to 4, then we are multiplying b 4 times. Now we are taking the pair of the numbers, pair of a, so therefore the answer is a, pair of b into b, and one of the pair of again b, then into again b. Then answer of this question, there is a into b, that is b square. Okay, so answer is a b square. Clear? Second one, in square root 2 raised to 12, in square root 2 raised to 12, so therefore we are solving this one. Okay, so we are taking multiply of 2 12 times, so 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Okay, now we are taking the pair of 2's. Okay, so one of the pair, from the one of the pair of 2 we are taking one of them. अगेन दूसरी पेयर में से भी एक नंबर निकालेंगे, तीसरी पेयर में से भी एक 2 निकालेंगे, फोर्थ पेयर में से भी एक 2 निकालेंगे, फिफ्थ पेयर में से भी एक 2 निकालेंगे, एंड लास्ट सिक्स्थ पेयर में से भी एक 2 निकालेंगे. देन फाइनल आंसर विल बी 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64. मल्टीप्लाई करना है. 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64. Clear? Now third one we are taking 2 raised to 8 into 3 raised to 4. C1 in square root 2 raised to 8 into 3 raised to 4. Okay, 2 raised to 8 into 3 raised to 4. Clear? So now again we are taking the, therefore 2 8 times, so 1 2 3 4 5 6 7 8, and 3 4 times, 1 2 3 and 4. Okay, we are writing 4 times 3. Now taking the pair of the all numbers. Okay, so while we taking the pairs, one of the pair of 2, so therefore 2, second pair of 2 from them, one of the 2, third pair of the 2 we are taking 2 of them, and fourth pair of 2 again we are taking 2 of them. Okay, 2 from them. Pair of 3 from it we are taking 3, and again pair of 3 from we are taking 3 from it. Okay, so final answer will be 2 2 4, 2 8, 2 16 into 3 3 9, 16 9 144. Clear? 16 9 144. Clear? Understood? Note down this one. Now rest of the two sums you have to take in your homework and do it yourself. Okay,
Now question number 6. What is the side of the square room whose area is 144 meters square? Find the side of square whose area is given as a 144 meter square, right? Whose area that is given as a 144 meter square. So area of square is given, so we are taking formula of area of square. Formula of area of square, that is side into side. Side into side, that means side square, and area is given as a 144. We are placing 144 at here. So therefore 144. Now square that are shifted to second side to perform a square root. So square root of 144 is equal to the side. So square root of 144, there is, we know about that, 12. So side of the square, that is 12 centimeter, 12 meters, sorry. Side of square is 12 meter. Clear? Understood? Question number 7. Find the length of the other two sides of right angle triangle if one side is 12 centimeter and the hypotenuse is 13 centimeter. Right angle triangle is given. So in the right angle triangle, one side is 12 centimeter, one side is 12 centimeter, and other side, find the other side, we need to find to this side, and hypotenuse is given as a 13 centimeter. Clear? So we are giving them name as a ABC. Okay, we are giving them the name as a ABC. So using the Pythagoras theorem, right angle triangle is given, so therefore we are using the Pythagoras theorem. Using the Pythagoras theorem, we all know about that. What is the Pythagoras theorem? Height square plus base square is equal to hypotenuse square. So height, there is AB square, plus base, there is BC square, is equal to hypotenuse, there is AC square. Clear? In the standard 7 we already learnt about it. Okay, right? So therefore AB is not given, so AB square we are writing as it is. BC is 12, so 12 square. AC is given as a 13 square. So therefore AB square plus 144 is equal to 169. 13 square, there is 169, right? So 144 that are shifted to second side to subtract with the 169. So final answer will be AB square equal to 169 minus 144. 169 minus 144, there is 25. So AB square, there is 25. So now square is shifted to second side to form a square root. So AB is equal to square root of 25, then 5 meter. Right? Square is perform a square root on the second side. So square root of 25, there is 5 meter. Clear? Note down this, both of the sum. Now here we have completed the exercise 3C. Now we are taking the
square root of the numbers using the long division method. ओके, अभी तक हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से एंड साथ में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के हिसाब से, बट नाउ यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो हाउ टू solve these numbers and how to find the square root of this particular numbers. Okay, so in today we are taking that. Okay, so यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके दिखाते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. So one of the question that is we are taking directly एक्सरसाइज 3D एंड उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो यूजिंग दिस मेथड, ओके, यूजिंग दैट मेथड हम यहाँ पे टोटली मे बी देर इज अ 10 सम्स, 1 2 3 4 5 9 सम्स, देर इज अ 9 सम्स एंड वी आर टेकिंग मोस्टली सम्स फ्रॉम देम टू अंडरस्टैंड बेटर कि वहाँ पे कौन सी में कैसे करें उसको डिवाइड. ठीक है, तो उसके मैं साथ में सम्स यहाँ पे समझाता जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ और आपको समझना है साथ में. ओके, सो एक्सरसाइज भी साथ में हो जाएगी और एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा. सो वन ऑफ देम वी आर टेकिंग आई. पीछे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर्स जो बड़े नंबर्स हैं वो पीछे से हैं. ठीक है, सो एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन 1 दैट इज find the square root using division method, using long division method, right? So let's start. पीछे से हम स्टार्ट करेंगे. I1 है फर्स्ट ऑफ ऑल. क्वेश्चन है 831744, 831744. तो अभी तक हम जो डिवाइड करते थे, जैसे भी हम डिवाइड करते थे, ठीक है, तो उसमें डिवाइड में हम क्या लेते थे, टेबल्स लेते थे, राइट. तो यहाँ पे भी टेबल्स ही लेने हैं, लेकिन जनरल टेबल जो हम यूज़ करते हैं 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, वो टेबल्स नहीं लेने. हमको क्या लेना है, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर्स का टेबल लेना है. ठीक है, कौन से स्क्वायर्स का टेबल लेना है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, वो टेबल्स हमको लेने हैं. तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं हम पहले कि आपको इजीली पता चले. 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9. तो हम ये इस टेबल के हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे. क्लियर? 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100. ओके, क्लियर? अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि अभी हमें यहाँ पे डिवीज़न करना है, लेकिन कैसे डिवीज़न करना है कि पेयर में नंबर्स लेने हैं. ठीक है, स्क्वायर है तो इसलिए हम यहाँ पे कितने पेयर्स लेंगे, 2 नंबर्स की पेयर लेंगे. 2 डिजिट के पेयर बनाने हैं आपको. कहाँ से बनाने हैं, पीछे से हम 2 डिजिट की पेयर पे हम बनाएं और उस पर हमको मार्क करना है, बार करना है. ठीक है, कि पहले ये 2 डिजिट की पेयर, ये 2 डिजिट की पेयर और ये 2 डिजिट की पेयर. क्लियर? तो 2 डिजिट की पेयर आपको फॉर्म करनी है पीछे से, और मैंने यहाँ पे 2 डिजिट की पेयर फॉर्म कर ली और वही साथ में पेयर लेनी है. ठीक है, हम जब डिवाइड करेंगे तब हम उन नंबर्स को साथ में ही लेंगे. राइट? कैसे करेंगे? वी आर टेकिंग हियर
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बोला कि दो दो के पेज में ही लेना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेज लेते हैं 83। तो 83 जो है किसके नंबर्स के बिटवीन आएगा? भाई 83 है तो 9 स्क्वायर 81 है, वो तो छोटा हो जाएगा 83 से, एंड 10 स्क्वायर 100 जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 10 स्क्वायर 100 तो चलेगा नहीं, तो उससे छोटा कौन सा हुआ? 9 स्क्वायर 81। तो 81 से डिविजिबल होगा 9 से। सो 9 9 जा 81, राइट, 9 9 जा 81, क्योंकि हमको पता है कि भाई अगर नंबर बड़ा हो जाएगा तो वो तो लेते नहीं, उससे इमीडिएटली छोटा नंबर लेते हैं, राइट। तो 9 स्क्वायर 81 हमने यहाँ पे लिया। नाउ यहाँ पे जो नंबर आप लिखोगे वही नंबर आपको ऐड करना है। 9 + 9 कितना आया? 18। यहाँ पे डिवीजन है तो हमें पता है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 83 - 81, 3 - 1 2, 0। ठीक है, तो 0 लिखे कि नहीं लिखे, दोनों सेम ही है, मैं यहाँ पे 0 निकाल लेता हूँ। नाउ वी आर टेकिंग 17। ऑलवेज पेयर में ही नंबर लेना है, जो दो पेयर है नंबर की वो पेयर में ही नंबर लेना है, सिर्फ 1 या सिर्फ 7 नहीं आएगा, 17 पूरा ही नीचे आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे कौन सा नंबर फॉर्म हुआ? 217। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है कि भाई यहाँ पे वंस की प्लेस पे ऐसा कौन सा नंबर लूँगा तो मुझे 217 या फिर 217 के नियरेस्ट आंसर आएगा। और यहाँ पे नंबर को किस में से लेना है? इसमें से ही लेना है कि भाई हम 181 के साथ करें। अगर मैं वंस की प्लेस पे 1 लूँ तो उसके साथ ही मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 181 जा 181। ठीक है, क्या आया आंसर? 181। अगर हम वंस की प्लेस पे यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है, अगर मैं वंस की प्लेस पे 2 लूँ तो मुझे 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, दैट्स अ कंपल्सरी रूल। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 2 1 जा 2 + 1 3, 364, राइट। तो 217 से 364 तो बड़ा हो गया, तो उससे तो हो नहीं सकता, क्या आएगा? 1 से ही आएगा। क्लियर? सो वी आर टेकिंग 181, 1 जा और आंसर क्या आया मुझे? 181, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो नंबर लिखा वही नंबर हम ऐड करेंगे। 1 लिखा था तो 1 ही ऐड करेंगे इसमें अगेन, तो 1 + 1 2, तो 182 हो गया यहाँ पे। क्लियर? और यहाँ पे वंस की प्लेस खाली रखनी है। सब्ट्रैक्ट करें, 7 - 1 6, 21 - 18 देयर इज अ 3, 36, राइट। नाउ 44 साथ में ही आएगा, दोनों पेयर में है, वी नो दैट। क्लियर? तो आपको यहाँ पे अगेन चेक करना है अभी 3644। ठीक है, अभी आ गया आपको 3644 और यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया? 182 और साथ में वंस की प्लेस, तो 182 और साथ में वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर लें? तो मुझे आंसर 3644 के नियरेस्ट या फिर 3644 मुझे आए। तो पहले 1 के साथ करके देखते हैं। 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, यानी आपको आंसर क्या आया? 1821। वो तो बहुत छोटा है। ठीक है, 2 के साथ करके देखें। 182, वंस की प्लेस पे हम क्या लेंगे? 2, तो वही नंबर अब अगेन मल्टीप्लाई उसके साथ ही करेंगे ऑलवेज। यहाँ पे वंस की प्लेस से 1 लिया था तो 1 के साथ ही आपको मल्टीप्लाई करना है कंपलसरी। वंस की प्लेस पे हम क्या लेंगे? 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो 2 के साथ ही आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 + 1 3, आ गया मुझे 3644 आंसर। तो कितने जा हो रहा है? 182 × 2 अगेन 182 और 2 मैंने एक्स्ट्रा लूँगा तो 182 2 जा, यहाँ पे भी 2 जा, 2 2 जा देन 3644, आंसर आ गया आपको यहाँ पे 000। अंडरस्टूड? तो फाइनल आंसर आपको क्या आया? व्हाट इज द फाइनल आंसर? माय फाइनल आंसर इज √ 831744। क्या आया आंसर आपको? 912। क्या आया? 912। क्लियर? अंडरस्टूड? नोट डाउन दिस वन।
अगेन और एक सम लेके देखते हैं, आपको समझा रहे हैं आप। फाइव 4 2 8 9 B1 ले रहे हैं। फाइव 4 2 8 9, ठीक है। तो 5 4 2 8 9 लेंगे, दैट मीन्स हमको क्या करना है, अभी पीछे से दो दो नंबर्स की पेयर बनानी है। पहले तो बना लें 2 नंबर की पेयर, 2 नंबर की पेयर। अभी यहाँ पे 2 नंबर्स नहीं बचे हैं तो क्या करें, एक ही नंबर बचा है तो एक ही नंबर पे बार कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन आपको पीछे से तो 2 2 नंबर्स की पेयर बनानी है। इन दी लास्ट, एट दी लास्ट आपको एक नंबर बचे तो एक नंबर पेयर करना है, 2 नंबर बचे तो 2 नंबर पे ही बार कर देना है। क्लियर, अंडरस्टूड। अगेन वही की वही प्रोसेस रिपीट करें। 5 है तो 5 कहाँ पे आएगा मेरा, किसके बिटवीन आएगा, 3 स्क्वायर 9 तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर 4 ही लेना पड़ेगा मुझे, राइट। 3 स्क्वायर 9 जो है 5 से बड़ा हो जाएगा, तो वो तो डिवाइड हो नहीं सकता। क्या लेंगे हम, 2 स्क्वायर 4, तो 2 2 जा 4 माइनस 5 माइनस 4 1। और यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि 42 है साथ में पेयर में ही है, तो वो पेयर ही डायरेक्ट हम नीचे लेंगे, ठीक है। तो आया आपको यहाँ पे 142। इस तरफ आ जाएं इसमें, तो यहाँ पे जो हमने नंबर लिया उसी को हमको क्या करना है, ऐड करना है, राइट। तो 2 + 2 आ गया यहाँ पे आपको 4। अभी वंस की प्लेस चेक करनी है। अगेन वंस की प्लेस में यहाँ पे मैं 4 के साथ कौन सी रखूँ तो मुझे 142 के अराउंड आंसर आए। तो 1 से ही चेक करते हैं। पहले तो वंस की प्लेस पे 1 रखें तो 41 1 जा 41 आएगा। वंस की प्लेस पे 2 रखें तो 42 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 84 आएगा। वंस की प्लेस पे 3 रख के देखें तो 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, दैट्स अ रूल। जो नंबर वंस की प्लेस पे लेंगे वही नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 129, ठीक है। और 4 के साथ भी एक बार करके देखते हैं तो 44 4 जा वंस की प्लेस पे 4 लिया तो इसलिए 4 के साथ ही मल्टीप्लाई किया मैंने। 4 4 जा 16 1 कैरी 4 4 जा 16 + 1 17। तो 4 के साथ हमने किया मल्टीप्लाई तो 176 आया, तो वो तो 142 से बड़ा हो गया। तो हम क्या लेंगे 3 के साथ 43 3 जा कितना आया मुझे 129। क्लियर। सो वी आर टेकिंग 3 8 हियर 43 3 और ऊपर भी 3 3 3 जा 43 3 जा 129। समझ में आया सभी को, अंडरस्टूड। अगेन वापस सब्ट्रैक्ट करें अभी, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें तो 12 3 12 - 9 3 3 - 13 - 12 यानी कि 1। 89 जो है वो पूरा पेयर में ही है तो नीचे पूरा पेयर में ही आएगा, राइट। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे 3 था, राइट। यहाँ पे हम वंस की प्लेस पे क्या ऐड किया 3, तो 3 को ही रिपीट करेंगे तो 3 + 3 हमारा आया 6 46, ठीक है। जो नंबर यहाँ पे लिखो उसी को ही रिपीट करना है, ऐड करना है, रिपीट, अंडरस्टूड। अभी अगेन यहाँ पे वंस की प्लेस खाली है हमको, तो वंस की प्लेस पे हम कौन सा नंबर लेंगे तो मुझे 1389 के नियरेस्ट या फिर 1389 एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो चेक करें 4 6 वंस की प्लेस पे 1 रख के देखें तो क्या आएगा 4 6 1 ही आएगा। क्लियर, तो वो तो बहुत छोटा है। 2 रख के देखें 4 6 2 2 जा 2 2 जा 4 6 2 जा 12
4 2 8 + 1 924, वो भी छोटा हो जाएगा। 463 वंस की प्लेस पे 3 रखें और 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे रखा। 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12 + 1 13। आ गया आपको 1389। कहाँ पे आया? 3 के साथ आया आपको, ठीक है। तो हमें कौन सा लेना है? 3 के साथ वाला लेना है। यहाँ पे क्या रखेंगे हम? 3 4 6 3, ऊपर भी 3 और यहाँ पे 1389 माइनस करेंगे तो आ गया यहाँ पे आपको 0 0 और ये फाइनल आंसर आपका आया 233, ठीक है। तो आपको फाइनल आंसर विल बी √ 54289 इज इक्वल टू दी 233। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आया सभी को? नोट डाउन दिस वन। डियर स्टूडेंट्स, अभी और सम इसी एक्सरसाइज के, इसी क्वेश्चन के, फर्स्ट क्वेश्चन के और 3-4 सम यहाँ पे हम बोर्ड पे करेंगे, ठीक है। तो ही आपको समझ में आएगा। और आप ये डिवीज़न वाले सम अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करने हैं तो ही आपको समझ में आएंगे, बाकी समझ में नहीं आएंगे। तो इसका रिवीजन आप प्लीज़ करना, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है जितना हो सके उतना ज़्यादा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो अच्छी तरह से समझ लो पहले पूरे वीडियो में, भले आपको 10 बार पॉज करना पड़े वीडियो, तो पॉज करके समझो, फिर बाद में आप उसको खुद करने की ट्राई करो, ठीक है। सो होमवर्क में यहाँ पे अभी आपको यही सम्स आपको अगेन रिपीट करने होमवर्क में सारे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे बाकी के सारे सम्स, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव टू एंजॉय दिस क्लास वेरी मच। सो टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।